Hello and Jai Hind to all my students. So let's start the second part of the chapter Deep Water. In part 1 we have read that author was dug by a strong tall boy into the water and he was almost drawn and about to die. But then what happened, that we will study in this part. So the next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. Like when he regained his consciousness, when he was into his senses, in his senses, then what he find himself lying on his stomach beside the pool and vomiting. वो पानी उसके मुंह से निकल रहा था and he was vomiting badly. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. मगर जिसने उसे फेंका था पानी में वो कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था. तो किसी ने कहा कि वो मर भी सकता था. Be all right now and let's carry him to the locker room. शुक्र है अब सब सही है, तो उसको वो locker room में लेकर गए. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. और कुछ घंटे बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैं बहुत ही weak feel कर रहा था, कांप रहा था, and I cried a lot. And then I could not eat that night for days. A haunting fear was in my heart. बहुत टाइम तक, लाइक रात को उसने कुछ खाया भी नहीं और बहुत टाइम तक वो जो डर था उसके दिल में था, उसको बार बार हॉन्ट कर रहा था, डरा रहा था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. उसकी अगर थोड़ी सी भी झलक सी भी उसके दिमाग में आती थी तो उसे एकदम से अपसेट कर देती थी. मेकिंग मी वॉबली इन माई नीज एंड सिक टू माई स्टमक. और ऐसा लगता था कि उसकी जो पाँव में जान ही नहीं है एंड एकदम से लगता था ही विल अबाउट टू वॉमिट. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. और वो जो डर था उसके मन में अब भी था और वो जब भी avoid कर सकता था पानी को, he tried to avoid. Okay, a few years later, when I came to know the waters of the Cascades means waterfalls. I wanted to go into them. जब मुझे पता चला कुछ waterfalls के बारे में तो मैं जाना चाहता था वहाँ पर. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और जब भी मैं कहीं पे जाता था, वेडिंग मतलब अगर पानी में मैं चल रहा हूँ या फिर I was like taking bath in warm lake, तो वो जो डर था वो मुझे फिर से जकड़ लेता था. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. और जब भी मैं पानी में अपने आप को पाता था तो वो जो डर है वो वापस मुझे पकड़ लेता था और I feel like that my body is paralyzing. मतलब वो काम करना बंद कर देती थी और वो जो डर था वो वापस उसको जकड़ लेता था. This handicap stayed with me as the years rolled by. बहुत साल बीत गए, वो जो अब भी जो डर था जो वो मुझ में था. In canoes on main lakes fishing for landlocked salmon. स्मॉल बोट्स को कहा गया है जिस पे वो लेक्स में जाते थे फिशिंग के लिए. सैल्मन इज़ अ फेमस मोस्ट ईटेबल फिश. Bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, these are the places and name of the fishes where they go for fishing. And whenever I went, the haunting fear of the water followed me. मैं कहीं पर भी जाता था वो जो fear है मेरे साथ ही जाता था. It ruined my fishing trips and deprived me of the joy canoeing, boating and swimming. और वो जो बाकी जो लोग enjoy करते थे मैं वो नहीं कर पाता था, ना boating ना canoeing ना swimming. Now I used every way I knew to overcome this fear, but this held me firmly in its grip. मैंने हर वो तरीका अपनाया ताकि मैं इसको overcome कर सकूं, मगर इसने मुझे बिल्कुल पकड़ रखा था. Finally, one October I decided to get an instructor and to learn to swim. मैंने finally एक instructor को, मुझे था कि अब मुझे एक इंस्ट्रक्टर को हायर करना पड़ेगा स्विमिंग सीखने के लिए. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week and hour each day. और वो क्या है, हफ्ते में 5 दिन जाता था और हर रोज़ 1 घंटे प्रैक्टिस करके आता था. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट. वी went through a pulley and then ran on an overhead cable.
अच्छा, उसने क्या है, जो इसका इंस्ट्रक्टर था उसने एक उससे रोप अटैच कर ली थी जो एक पुल्ली से थी, और उसका जो एक एंड था वो उसके इंस्ट्रक्टर के पास था। लाइक दिस इज़ द पूल, तो दैट इज़ रोप इज़ अटैच टू सम पुल्ली, और जो इंस्ट्रक्टर है वो उसकी जो दूसरा एंड होता था वो इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा होता था। एंड येस, ही held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool। और वो क्या है, एक तरह से दूसरी तरफ बार बार क्या है स्विम करते थे। आवर्स आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे, वीक्स आफ्टर वीक, वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। अब क्या था, कितने दिन बीत गए थे, हफ्ते बीत गए थे, मगर वो जो थोड़ा सा जो डर था ना वो अब भी मुझ में था। Each time the instructor relaxed his hand on the rope and I went under, some of the old terror returned and my leg froze। और जैसे वो रोप को थोड़ा सा ढीला छोड़ता था वो फिर से एकदम से मेरी जो बॉडी है पैरालाइज्ड होने लग जाती थी, पाँव एकदम काम करना बंद कर देते थे और वो पुराना जो डर है वापस आ जाता था। It was 3 months before the, sorry for this background sound, it was 3 months before that, it was 3 months before the tension began to slack। और अब क्या था कि 3 महीने बीत चुके थे, अब जो वो जो टेंशन थी, जो फियर था वो कम होता जा रहा था। देन ही थॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। अब जो उन्होंने मुझे सिखाया कि वो पानी के अंदर क्या है, सांस को कैसे छोड़ना है और ऊपर आके फिर कैसे इनहेल करना है। आई रिपीट द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head under the water। और वो जो था कि धीरे धीरे जो पैनिक है वो पैनिकनेस कम होती गई जब मैं उस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट कर रहा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड टू किक विद माई लेग्स। अब क्या था कि पूल के एक तरफ वो बस उधर पे पकड़कर उसको अपनी लेग्स से प्रैक्टिस करता था। फॉर वीक्स I did just that। At first legs refused to work but then gradually relaxed and finally I could command them। पहले क्या था, उसकी जो legs उन्होंने काम करना मतलब it refused, वो और जैसे कि चल ही नहीं सकती है, and gradually वो थोड़ा relax हुए और उसके बाद now he had the control on his legs। Thus piece by piece he built a swimmer। अच्छा, उसका जो स्विमर है he is very smart। उसने क्या है हर एक चीज़ को उसको अलग से सिखाया था। and when had perfected each piece he put them together into a integrated whole। और जब उसने क्या है, जब सारी चीज़ों से अलग अलग सिखा दी थी तो उसने फिर क्या है सारी चीज़ों को एक साथ ले आया था। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन सी स्विम। अच्छा, उन्होंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था एंड लाइक इट टुक दीज मंथ्स एंड फाइनली जब क्या है अप्रैल आया तो उसने क्या कहा कि अब तुम स्विमिंग सीख चुके हो। Dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke, these are the swimming styles। and what he was saying that now you know all of these। I did, the instructor was finished। और उसके बाद मैं सच में सीख गया था और इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ़ आई वुड बी terror stricken when I was alone in the pool। I tried it, swam the length up and down, tiny vestiges of the terror would return। अब उसने क्या था कि उसने स्विमिंग तो सारी सीख ली थी बट ही वॉज स्टिल नॉट दैट कॉन्फिडेंट। उसे एक था कि अगर अब भी वो पूल में अकेला है तो वो जो डर है वापस उसमें आ जाएगा एंड ही विल फील दैट टेरर अगेन। ही जस्ट स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, बहुत बार उसने लाइक ही डिड दैट। बट नाउ आई कुड, अब जब भी वो डर वापस आता था तो क्या होता था, बट नाउ आई कुड फ्रॉन and say to the terror trying to scare me, well here's to you। अब वो क्या होता था, जब भी वो डर उसके दिमाग में वापस आता था वो क्या है उसे एक उस डरता नहीं था बट एक अच्छा सा रिप्लाई देता था कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो ये देखो, लुक एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और देखो अब, और वो फिर एक और पूरा मतलब एक बार फिर से उस पूरी पूल की जो लेंथ है उसको कवर करता था। दिस वेंट on until July, but I was still not satisfied and was not sure that all the terror had left। अब भी क्या था, जुलाई मंथ आ गया था मगर वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसे अभी लगता था कि वो टेरर उसमें है, वो उसे नहीं लग रहा था कि अभी जो टेरर है उसे छोड़कर चला गया है। सो उसने क्या किया, सो आई वेंट टू लेक
Wentworth in New Hampshire dived off a dock at Driggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, B-stroke, side stroke, and then backstroke. These are again the swimming styles and the places where he went for swimming. Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. और वो जो टेरर है वो सिर्फ तब आया एक बार जब वो एकदम लेक के मिडल में था. I put my face under and saw nothing but bottomless water. मैंने जब अपना सर पानी के अंदर डाला तो मुझे उस टाइम सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था. That bottomless water. The old sensation return in miniature. और मानो वो फिर से क्या है, वो जो डर है थोड़ा सा वापस आ गया था. But I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम और क्या कर सकते हो? It fled and I swam on. और वो जो डर था तभी झट से चला गया और मैंने क्या है पूरा उसको तैरा. Yet I had resolved doubts. At my first opportunity, I hurried west, went to the Titan, to Conrad Meadows, and to Conrad Creek Trail to Made Glaciers, and camped in the high meadows by the side of the warm lake. These are again the places where he went and he do campaigning there. And the next morning I stripped and dived into the lake and swam across the other shore and back, just as Dog Corcoran. अब क्या था, उसने क्या है नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वो लेक में क्या है डाइव किया और उसने उसको पूरी उसकी लेंथ कवर करके वो वापस भी आया एक शोर से. एंड देन वो ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या है डॉग कॉर्पोरन एक बहुत ही फेमस स्विमर थे, यूज टू डू, जैसे वो करते थे. एंड देन आई शाउटेड विद जॉय एंड द गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको. और उसने क्या है गिलबर्ट पीक पर ही जस्ट शाउटेड एंड दैट इज़ अ विनिंग मूवमेंट फॉर हिम. ही वॉज सो मच हैप्पी दैट फाइनली ही ओवरकम दैट फियर. तो वो जब ज़ोर से चिल्ला रहा था तो ही कुड हियर हिज वॉइस एंड फाइनली आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. एंड देन द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. और वो जो एक्सपीरियंस था उसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव था मेरे पर. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट. जिन्होंने किसी डर पे काबू पाया वही उसको अप्रिशिएट कर सकते थे उस मूवमेंट को. इन डेथ देयर इज़ पीस एंड देयर इज़ टेरर ओनली इन द डेथ, फियर ऑफ डेथ. अब क्या है डेथ बहुत ही शांत होती है, मगर क्या कह रहे हैं कि जो फियर ऑफ डेथ, जहाँ पर डर है वहाँ पर फियर ऑफ डेथ है. ठीक है. एज रॉजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. रॉजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमें डरना ही है किसी चीज़ से तो हमें डर से डरना चाहिए. दैट मीन्स डर को अपने पास नहीं आने देना चाहिए. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, and the will to live somehow grew in intensity. अब क्या था कि मैंने दोनों एक्सपीरियंस को फेस किया है, मरने के डर को भी और जो टेरर था, उसकी खौफ था, जो फियर ऑफ डेथ, उसकी वजह से, उन दोनों की वजह से जो उसमें और चाहत थी जीने के लिए, that has grew. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside the fear. Finally he was so relaxed. Now there is no kind of fear in him. Now he can do whatever he feels like. And yes, वो ट्रेल्स मतलब पतले रास्तों पर चल सकता था, किसी भी पीक पर चढ़ सकता था. अब जो डर था वो उसने क्या है साइड कर दिया था. He was happy. So finally he was just giving us the message also that yes, one should not fear of fear and fight with it and should overcome it, and yes, to enjoy the life. I hope you are hope you get the summary, and still if you have any doubt you can ask. Have a good day.